Hello, students. Today I'm back with a topic for class 6. For today's lesson, I have chosen the topic Components of Food from Class 6. It's chapter number 2. We'll be studying about nutrients in food, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water and roughage, balanced diet, and deficiency diseases in this chapter. When it comes to food items, you all know that you enjoy eating different types of food items. Some of you might be loving bread to have in the breakfast, some chapatis, some are like having their parathas as the favorite ones, some would like to chew upon rice or maybe idli, dosas, and all. Some would prefer to have sprouts in the breakfast. Some others they would like to have curd or butter or jam with bread and parathas. Some others who are non vegetarian they would keep meat, fish, eggs, other seafoods over all other these things. But all these things, whatever we eat, they do supply us with certain components. Those components of our food items are called as nutrients. These are required for our growth, for proper function and maintenance of our body. So we can say that food actually is a source of nutrients and it includes all the components which are required for building a healthy body. Now comes what are the major nutrients present in our food? हमारे फूड में ऐसा होता क्या है जिससे हम फिट रहते हैं, जिससे हमें गुड हेल्थ मिलती है? ऑल राइट, सो व्हेन इट कम्स टू द न्यूट्रिएंट्स, हम सारे फूड आइटम्स को, सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स को थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज फूड ग्रुप्स. द फर्स्ट वन फूड ग्रुप इज एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड वन इज बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द थर्ड वन इज प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा बॉडी को. दीज विल इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं? कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं? सो दोज फूड आइटम्स विच हैव शुगर्स. शुगर्स वाला पार्ट कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहता है एंड फैट्स मीन्स द ऑयली कंटेंट पार्ट, बटर, घी एंड ऑल दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ फैट्स. When it comes to बॉडी बिल्डिंग फूड, तो बॉडी बिल्डिंग का काम क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग फूड्स विल हेल्प अस इन आर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड एंड वॉर्न आउट टिश्यूज. मतलब क्या हुआ? अब आप लोगों को तो अभी नहीं पता कि टिश्यूज क्या होते हैं. एक्चुअली हमारी बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते हो आप, जिनको हम बोलते हैं सेल्स, उन सेल्स से मिलके बनी होती है. सो उन सेल्स का ही बिगर कॉम्बिनेशन, व्हेन द सेल्स ग्रुप अप दे फॉर्म टिश्यूज, जिससे हमारी पूरी बॉडी अलग अलग टिश्यूज से बनी है. सो इफ़ वी गेट हर्ट समहाउ, कभी चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी अपने आप रिकवर भी कर लेती है, उसे रिपेयर करती है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम्स विच वी टेक इन आर फूड, इन आर डाइट. अगर आप अपनी डाइट में मोर ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड्स लोगे तो यू विल हैव गुड मसल मास. आपकी मसल्स बढ़ेंगी जिससे आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं दिखोगे. सो मिल्क, pulses, fish, meat and cheese, these are rich sources of proteins in the food. So proteins वाला जो component है food का, that is placed under this food group which is body building food. Now next comes protective food. As the name suggests, it will protect you. So it will protect you against various diseases. आपको बीमारी से बचाता है. And what all nutrients are included in this? They are vitamins and minerals. अब vitamins और minerals किस में present होते हैं? They are all present in green leafy vegetables, fruits and preferably whatever raw you can eat, no, in terms of fruits and vegetables, all that contains protective food items. So these five major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Okay, so these five we studied कि they are classified under different food groups. Now nutrients in food अगर पूछा जाए तो you will name these five, out of which carbohydrates and fats, in which category are they placed? Energy giving. Proteins under bodybuilding, vitamins and minerals under the category of protective food items. Let's talk about carbohydrates first of all. Carbohydrates, being the source of energy, they form our staple diet. Okay, and staple diet means they are the main component which need to be, as a must part, which need to be included in our diet. Carbohydrates are of various types. Some of the carbohydrates they are simple carbs and the other ones are complex carbs. हम carbohydrates को कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है हैविंग वाटर कंटेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन.
So these compounds generally have carbon, hydrogen and oxygen content in them, and they are of two major types. या तो simple carbohydrates होते हैं या होते हैं आपके पास complex carbohydrates. तो जो simple carbohydrates हैं, they are like sugars और बहुत जल्दी, they don't need time for digestion, they are quickly absorbed by the body. Like the case of sugars, which we consider as like glucose हो गया आपका. If a person is not feeling fine, if he or she is ill, so what doctors do? Doctors directly provide glucose into the bloodstream. So glucose को digest नहीं करना पड़ता, that directly gets into the blood and it gets digested very easily. Next it comes for complex carbohydrates. जो complex carbohydrates हैं, they are in terms of starch and cellulose. अब हम एक चीज़ सोचें कि एनिमल्स भी सर्वाइव करते हैं, दे ऑल्सो टेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एंड ह्यूमन बींग्स भी सर्वाइव करते हैं, दे आर ऑल्सो टेकिंग द फूड फ्रॉम प्लांट्स. Cows and all other herbivores, they are able enough even to digest a complex carbohydrate which is called cellulose. वो तो घास फूस भी खा लेते हैं ना, उनको तो घास भी हजम हो जाती है, हम लोगों को नहीं होती. क्यों? Because in their stomach there is a specific bacteria. उनके स्टमक के अंदर एक पार्ट होता है, and in that portion of the stomach there is a bacteria which digest this fibrous material cellulose. और human beings जो हैं वो cellulose नहीं digest कर सकते हैं. So carbohydrates, they are simple ones or the complex carbohydrates. Complex carbohydrates like starch and cellulose, they can be easily digested by the herbivores, but human beings can digest starch only, not the cellulosic part of carbohydrates. Okay, कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें से हम लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं. स्टार्च को हम डाइजेस्ट करते हैं इन फूड आइटम्स. व्हेन वी टेक स्टार्च, दैट गेट्स डाइजेस्टेड, इट स्टार्ट्स इट्स डाइजेशन इन द माउथ इटसेल्फ. इसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है. इसके लिए आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग. अगर आप बॉइल्ड राइस लो, ठीक है, बॉइल्ड राइस को आप च्यू करो और फिर च्यूड राइस जो है, जो आपके माउथ में च्यू हो गया, उसका स्वीटनेस इट गेट्स ऑलरेडी इनटू योर माउथ थ्रू द सलाइवा पार्ट, इट गेट्स इनटू द बॉडी. बट जो बाकी का आपके माउथ में अगर च्यूड राइस रह गया, व्हेन यू टेस्ट दैट फॉर स्टार्च ना, यू गेट अ नेगेटिव टेस्ट. उसका स्टार्च हमारे माउथ में डाइजेस्ट होना भी शुरू हो जाता है. नाउ हाउ टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड आइटम. किसी फूड सैंपल में स्टार्च है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं? फॉर दिस व्हाट यू नीड इज, यू नीड टेस्ट ट्यूब्स, ड्रॉपर, tincture of iodine solution. This is iodine solution which actually is dark maroon in color, dark red, or you can say reddish brown in color. You need to take a piece of the sample. यहाँ sample लिया raw potato या ले लो cooked potato, boiled potato, bread, groundnut, different samples लिए. We just want to check कि किस sample में starch present है. So what we have to do is, we will take the different foodstuffs on the watch glass or on a spot plate. छोटी सी एक प्लेट लिया आपने या एक छोटा सा क्रूसिबल लिया, उसके अंदर आपने उस फूड आइटम को क्रश करके टेस्ट करना है. वाई वी नीड टू क्रश इट? क्योंकि कई फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा हार्ड एंड सॉलिड हैं. सो उसकी प्रेजेंस हम कैसे चेक करेंगे उसके अंदर? फॉर दैट वी विल क्रश द फूड सैंपल. द वेरी फर्स्ट स्टेप, वी विल मेक इट इनटू सॉर्ट ऑफ पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट की तरह आ जाए. Then we will add 2 drops of iodine solution in each of that. मतलब जो जो आपने सैम्पल्स लिए जो टेस्ट करना था कि इसमें स्टार्च है या नहीं, you will put drops of iodine solution on that. अब उसके बाद आपने कलर नोट किया, बिकॉज आपको मालूम है आयोडीन जब आपने डाला था, सो आयोडीन इनिशियली हैड रेडिश ब्राउन कलर. नाउ ऑन दैट फूड आइटम व्हेन यू चेक, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट एक्टिविटी पार्ट कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही. If the food item changes the color to blue black, mention it. If the color of that sample changes to blue black अगर उसका color हो गया reddish brown की जगह, if it comes into blue black color, then it confirms that that particular food item has starch in it. So starch के लिए you need to remember 2 things. One, that we have to use iodine solution, and second, that the final color comes out to be blue black. The food sample changes its color to blue black. Talking about the requirement of carbohydrates, कि हमें कितना carbohydrate चाहिए. So almost 45 to 65% an adult person की जो diet है, उसका part carbohydrates होता है. People who are doing more physical labor, they need more carbohydrates than to the ones who are leading a sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle का मतलब जो लोग बस बैठ के टाइम निकाल रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, जिनका lethargic lifestyle है.
For example, sports people, because they have to work too much, they require energy. Laborers, pregnant women, nursing mother means the feeding mothers, they also need more of carbohydrates than the average adults. उन सबको carbohydrates ज़्यादा चाहिए. Now, if excess of carbohydrates is taken, तो क्या होगा? This leads to obesity. Obesity क्या है? Obesity is a condition. I'll just tell you obesity किस तरीके की होती है, क्या हो जाता है उसमें एक person को. This is how an obese person looks like. Obesity होने से what happens is that it's a condition of overweight. The person gains too much of the weight. Whatever junk food he or she has taken, that gets deposited in form of fats on the body. And this condition of obesity leads to many of the heart diseases, high blood pressures, and most of the children, they are becoming obese these days. Reason being, they are feeding on the junk food. All these burgers, pizzas, noodles बहुत अच्छे लगते हैं सबको, है ना? But yes, these are the junk foods. If you take these in excess amounts, there is lots of fat and sugar in it. And otherwise you don't do any of the exercise also. So due to lack of the physical activity, ये जो इन सबके अंदर फैट और शुगर होता है, शुगर मीन्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट पार्ट. सो फैट्स एंड शुगर्स टुगेदर मिलके क्या करते हैं, वो एक पर्सन को ओबीस बना देते हैं, because they are not doing exercise. So all this fat gets deposited or accumulated होना means इकट्ठा हो जाना. So all that gets accumulated in the body और उससे एक person obese हो जाता है. So please take care. You need to avoid eating junk food and you need to exercise regularly to remain fit and healthy. On the other hand, if you are taking excess of carbohydrates, then तो it is leading to obesity and inactiveness. But अगर आप carbohydrates कम ले रहे हो food में, then what will happen? It will result in weakness and loss of weight. It will make a person thin and with reduced weight, we can say. बहुत कमज़ोर हो जाएगा, उसमें weakness रहेगी, energy नहीं है, तो he or she won't be able to work enough. Let's talk about the second component or the nutrient of our food group, that is fats. These fats, they are the richest source of energy. मतलब अगर आप equal amount of carbohydrate and fat ले रहे हैं, तो फैट जो है डबल एनर्जी देता है इक्वल एज कम्पेयर टू दैट कार्बोहाइड्रेट. आपने 1 ग्राम, सपोज करते हैं 1 ग्राम आपने लिया कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड, यानी कि सपोज वीट ले लिया इन सम फॉर्म और दी अदर, एंड 1 ग्राम ही अगर हम देखें किसका, फैट्स का, बटर ले लिया आपने, तो जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मतलब 1 ग्राम बटर आपको डबल एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू वीट. बट येस, वी शुड नॉट टेक इट एज अ रेगुलर पार्ट, क्योंकि फैट्स ऑल्दो आपको एनर्जी ज़रूर ज़्यादा दे रहे हैं, बट उसके साथ आपको एक्टिविटी भी चाहिए. अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो वो फैट डिपॉजिट हो जाएगा. So these fats, they are stored in our body for future use and they are called as the energy banks of our body. So whenever we are short on energy, this body uses those stored fats energy. जब अभी आप मान लो सपोज किसी दिन फास्ट रखते हो एंड यू आर नॉट ईटिंग द होल डे बट स्टिल यू हैव द एनर्जी, तब भी आप जिंदा रहते हो, तब भी आप अपने रूटीन वर्क्स करते हो, तो वो एनर्जी आपको इन एनर्जी बैंक्स से मिलती है जो फैट्स होते हैं. तो फैट्स हम जब रेगुलर लेते हैं अपने फूड में तो वो स्टोर हो जाते हैं, एक्सेस फैट जो भी है वो स्टोर हो जाता है बॉडी के अंदर. अब फंक्शंस क्या क्या करता है, फैट विच इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी हेल्प्स कीप अस वार्म. सबको मालूम है ना, मोटे लोगों को ठंड नहीं लगती. क्यों नहीं लगती? क्योंकि ये उसको गर्म रखते हैं, उनके अंदर बहुत फैट डिपॉजिटेड होता है. कहते हैं मोटी चमड़ी वाले हैं, इनको ठंड नहीं लगती. इट इज़ बिकॉज दे हैव फैट स्टोर्ड अंडर इट. सेकेंड, दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, मतलब एक तरीके से बॉडी के नीचे स्किन के ऊपर कुशन का काम करेंगे एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंजरीज. थर्ड इज दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन वाइटामिन इन द बॉडी. अभी हम आगे पढ़ेंगे, कुछ वाइटामिन जो होते हैं ना वो फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब अगर आपकी बॉडी में फैट्स हैं तो ही वो वाले वाइटामिन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ फैट्स, फैट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फैट्स कैसे होंगे, या तो होंगे सैचुरेटेड या होंगे अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड वाले फैट्स जो होंगे ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. मीन्स व्हाट, दे जनरली आर इन देयर सॉलिड स्टेट. रूम टेम्परेचर पे वो जमे रहते हैं, जैसे घी हो गया, घी जमा रहेगा, देसी घी इफ आई टॉक अबाउट. बटर हो गया, वो जमा हुआ होता है. तो ऑल दीज थिंग्स जो जमी हुई दिखती हैं आपको, दे आर सैचुरेटेड फैट्स. वो वाले घी वगैरह आइटम्स जो फैटी हैं और जमे हुए हैं तो वी कॉल देम एज सैचुरेटेड फैट्स.
एंड सेकेंड थिंग विच जनरली आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उनको हम बोलते हैं कि दे आर अनसेचुरेटेड फैट्स, जैसे कि रिफाइंड ऑयल्स हो गए, वेजिटेबल ऑयल, सोया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारे वेजिटेबल सोर्सेज से जो हमें मिलते हैं दे आर अनसेचुरेटेड, और जो हमें एनिमल सोर्स से मिल रहे हैं दोज आर सेचुरेटेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ बताऊंगी आपको, ध्यान से सुनो। अगर हम बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड फैट लेते हैं, इफ़ वी आर ईटिंग टू मच ऑफ सेचुरेटेड फैट, तो क्योंकि ये जमा हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर जाके भी ये जम जाता है। दिस इज़ देयर इन एनिमल फैट। एनिमल फैट जो है, अगर हम कुछ फूड आइटम्स पर्टिकुलरली ले लें ना, जो मीट वगैरह हैं, फिश, फैट रिच सोर्सेज, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, व्हेन वी ईट टू मच ऑफ देम दे क्लॉग द आर्टरीज एंड द वेन्स, वो हमारी ब्लड वेसल्स को बीच में उसके ब्लॉकेज कर देते हैं। फैट्स वो क्या करेंगे, ये हमारी ब्लड वेसल एक पाइप की तरह है, इसमें से फ्री ब्लड फ्लो होता है, मगर आपने बहुत ज़्यादा फैट खा लिया और ये फैट इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया इस पाइप के अंदर। ये देखो, ये पोर्शन दिखाया कि वो फैट जम गया। जैसे हमारी सिंक की पाइप होती है ना, किचन सिंक की पाइप्स, कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा उसके अंदर गंद चला जाए, वो जम जाता है अंदर, एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स द ब्लड फ्लो। अब इसमें से ब्लड को निकलने में प्रॉब्लम होगी, मतलब आपके हार्ट के ऊपर जोर पड़ेगा। सो एक्सेस फैट इट गेट्स डिपॉजिटेड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज वगैरह। अगर उनके अंदर कुछ ब्लॉकेज आ जाएगी तो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है पंपिंग के लिए। तो इफ़ यू ईट टू मच ऑफ फैट्स, तो एक्सेस फैट क्या करेगा, इट विल कॉज ओबेसिटी, इट विल गेट डिपॉजिटेड, इट विल मेक आर ब्लड वेसल्स नैरो, पतली कर देगा, नैरो कर देगा जगह को, ब्लड वेसल को नहीं, उसमें से जो ब्लड के निकलने का रास्ता है उसको कम कर देगा, एंड दैट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक्स। सेकेंड थिंग, अगर आपने फैट्स लिए कम, इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन फैट्स, डेफिशिएंसी का मतलब कमी होना, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा होना। सो इफ़ यू आर डेफिशिएंट इन फैट्स, तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो एनर्जी गिविंग फूड्स थे, तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होगी, थके रहोगे, वीकनेस होगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, धीरे धीरे वेट लॉस होगा। फैट्स नीड टू बी टेकन बट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। इससे और क्या होगा, स्किन विल बिकम रफ एंड ड्राई, बिकॉज आपकी स्किन के अंदर ऑयल का कम हो गया पार्ट, ऑयल कम हो गया तो स्किन के ऊपर रफनेस एंड ड्राइनेस विल बी देयर, विच विल ऑल्सो लीड टू वेरियस काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स। सो वी नीड टू टेक फैट्स बट ओनली इन अप्रोप्रिएट अमाउंट्स। और एक एडल्ट पर्सन को कितना फैट चाहिए, ऑलमोस्ट एट एन एवरेज 75 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे, जो हमें बिना स्पेशल केयर किए भी मिल जाता है, like because in form of milk you take that in form of ghee on the chapatis and all. So extra fat, extra sugars, all that is very very harmful, especially for the growing children like you people. Now how will you get to know कि there is fat in the food stuff? कैसे पता चलेगा कि फैट है उसमें? For that you need a dropper, you need paper and sample food stuff, कोई भी जो भी जिसमें आपको चेक करना है, you take that food stuff. What is the procedure, how you have to carry it out? You put a small drop or small amount of that food stuff on the paper and rub it. या तो आप रब करो, और नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप उसको उसमें क्रश करके डालो और फोल्ड करके रख दो पेपर को। Now observe that paper after some time. When you open it, you get to see patches on it. अगर आप उस पैच को लाइट में रखोगे, ठीक है, आपने ये आइटम रखा, फूड आइटम, उसके बाद आपने फोल्ड कर दिया या रब किया, एंड यू रिमूव द फूड आइटम एंड देन यू होल्ड इट अगेंस्ट लाइट, तो आपको क्या दिखेगा, इसके अंदर एक स्पॉट दिखेगा बीच में, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। दिस ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट confirms that the food item had fats present in it. So conclusion is that fat turns the paper translucent. ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जिसमें से लाइट क्लियरली पास नहीं हो सकती। ट्रांसपेरेंट होता है जो पहले पेपर जिसमें से लाइट आपको दूसरी साइड का पूरा दिख रहा है, बट इफ़ यू पुट ऑयल ऑन दैट, नॉर्मल सी चीज़ है, कई बार आपने नोटिस किया होगा, अगर आप कुछ खाते खाते काम कर रहे हो तो आपकी नोटबुक के ऊपर निशान पड़ जाता है, खाते हुए हाथ लग गए तो वो घी के निशान पड़ जाते हैं। सो दैट इज़ वेयर द पेपर गेट्स ट्रांसल्यूसेंट। सो दिस इज द टेस्टिंग फॉर फैट इन द फूड्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द अदर फूड ग्रुप। अभी हमने ख़त्म किया फर्स्ट फूड ग्रुप की बात को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आए। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड फूड ग्रुप, विच इज़ अबाउट द बॉडी बिल्डिंग फूड, which includes the nutrient proteins. So proteins are the body building blocks. They are important because most parts of the body like muscles, nails and hair, हम बोलते हैं ना आपके बाल अच्छे हैं बहुत, so उससे अगर आप बंदे से पूछोगे बाल इतने अच्छे क्यों हैं, that is it contains keratin which is a type of protein. nails and hair में हमारे keratin होता है which is a protein. So these proteins
are useful for building up muscles and for proper growth and good condition, healthy condition of our nails and hair. They are also known as body building foods. और specifically ये किस में present होते हैं? Sprouts are very good and rich source of proteins. What is their function? They are important for the growth of our body and they also help in repair and replacement of the worn out tissues. जब हमारे को कोई चोट लग जाती है तो हम जल्दी कैसे ठीक होते हैं? हमारे injuries और हमारे जो घाव हैं, wounds हैं, how do they get filled up? Because if you take proteins in the diet, more of proteins, that will help you in better and faster recovery. Sources from where you can get proteins. अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है? हमने कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप पढ़ ली. हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. हमने फैट्स में पढ़ ली टाइप. तो प्रोटीन्स की भी टाइप होती हैं. प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दोनों सोर्सेज से मिलते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द प्लांट सोर्सेज एंड द एनिमल सोर्सेज, सो फूड आइटम्स दैट कंटेन प्रोटीन्स, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें प्लांट प्रोटीन्स के, तो दे आर पल्सेस, सोयाबीन, पीनट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स. वॉलनट्स होते हैं अखरोट. ड्राई फ्रूट जितना है उसके अंदर कुछ में प्रोटीन्स भी बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है. फैट तो होता है थोड़ा, फैट्स भी रहते हैं एंड देन प्रोटीन्स ऑल्सो आर देयर. एंड इफ वी टॉक अबाउट एनिमल प्रोटीन, एनिमल की बॉडी से जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं दे आर इन फॉर्म ऑफ मीट. फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. मोस्टली यू मस्ट हैव सीन कि जितने कोस्टल एरियाज पे लोग रहते हैं, अपने साउथ इंडियंस को अगर हम देखें तो दे फीड ऑन फिश टू मच एंड दे हैव वेरी गुड हेयर. उनकी हेयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. देन एग्स एंड मिल्क आर ऑल्सो गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. सो प्रोटीन के टू सोर्सेज, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. नाउ लेट्स टेक अप हाउ विल वी चेक द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड स्टफ. कि उसमें फूड स्टफ में जो भी हमने सैंपल लिया प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, कैसे चेक करोगे? सो व्हाट ऑल केमिकल्स यू नीड फॉर दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. CuSO4 is copper sulfate solution. एंड वी रिक्वायर सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा. सो दीज टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड मेनली फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत बार आता है कि लाइक व्हाट इज इट दैट यू रिक्वायर फॉर टेस्टिंग प्रोटीन्स इन द फूड स्टफ. सो इट इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज कास्टिक सोडा. नाउ अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस, क्योंकि कोई भी अगर फूड आइटम है तो हमें उसको पहले ड्राई फॉर्म से हटा के उसे पेस्ट फॉर्म में लेके आना है. सो वी विल टेक फूड स्टफ इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स. यहाँ हमने बहुत सारे सैम्पल्स लिए. पोटैटोज ले सकते हो, पल्सेस ले लिया, जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो. जिसमें होगा प्रोटीन वो करेक्ट पॉजिटिव टेस्ट दिखाएगा, जिसमें नहीं होगा वो नहीं दिखाएगा. सो हियर वी विल टेक द सैम्पल्स इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स और हम उनके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड करके उसको क्रश कर लेंगे सो दैट इट गेट्स इन पेस्ट फॉर्म. दिस इज द टेस्ट ट्यूब. उसके अंदर हमने क्रश्ड एग और बॉइल्ड पल्सेस, वॉट एवर सैम्पल यू फील, वो लिया और उसको क्रश करके थोड़ा वाटर में पेस्ट बना लिया, थोड़े वाटर में. आफ्टर दैट वी विल ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सोल्यूशन. ऑलमोस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है, एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जिसको हमने बोला कास्टिक सोडा. सो कास्टिक सोडा की 8 to 10 ड्रॉप्स, 2 to 3 drops of copper sulfate solution and 8 to 10 drops of sodium hydroxide solution या caustic soda solution, they are put in the sample. आपने उसको sample में डाल दिया. Now after that you leave that sample test tube undisturbed. ये कलर था अगर उसका पहले, तो now you get to see if you leave it undisturbed the color changes to violet. Its color changes to violet. उसका कलर चेंज होके हो गया violet color. If the color changes to violet, this confirms the presence of proteins. So if you have taken the sample of crushed egg या boiled pulses, they will give a positive test. उनका color change होके हो जाएगा violet color. Now after that bodybuilding food group, we have the third food group which is protective, जिसमें first part आता है आपका vitamins and next आ जाएगा आपके पास मिनरल्स. लेट्स टॉक अबाउट वाइटामिन्स. वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है ना बहुत थोड़े थोड़े चाहिए होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हाँ बहुत चाहिए, बट येस दीज आर प्रोटेक्टिव फूड्स एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. इनका मेजर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. और इसी के साथ ये क्या करेंगे, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को या जो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग देम इन गुड कंडीशन. आइज, बोन्स, टीथ, गम्स, इन सब को भी वो बहुत गुड कंडीशन में रखते हैं, हेल्दी कंडीशन में रखते हैं. Now when it comes to vitamins, vitamins जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमने पढ़ा टाइप्स के हैं, फैट्स की हमने टाइप्स पढ़ी, प्रोटीन्स हमने पढ़ा प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स से मिलता है.
नाउ व्हाट अबाउट वाइटामिन्स? कुछ वाइटामिन्स जो हैं वो होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल एंड कुछ वाइटामिन्स होते हैं आपके फैट सोल्यूबल. एंड दीज वाइटामिन्स पहले कितनी टाइप के होते हैं, लेट्स स्टडी दैट ऑल्सो. So vitamins, they protect us against all these disease causing microbes and germs. And vitamins जो हैं कितने टाइप के हैं? A, vitamin B, C, D, E and K. यू मस्ट बी सरप्राइज ना कि यहाँ बी के साथ कॉम्प्लेक्स क्यों लिखा, क्योंकि बी वाइटामिन जो है ये और बहुत सारे टाइप्स के वाइटामिन से मिलके बना है, विच इज़ B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. सो इसलिए बी वाला वाइटामिन जो है दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. सो वाइटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं. मेजर रोल सभी का एक है कि दे विल हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज, दे विल प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीज, और ये साथ में हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को भी हेल्दी रखेंगे. दे विल हेल्प इन इंक्रीजिंग आवर इम्यूनिटी ऑल्सो. नाउ विल स्टडी कि ये जो फूड आइटम्स में हमने एक ग्रुप लिया वाइटामिन्स. वाइटामिन्स को अगर हम कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें मोर अमाउंट्स में दे आर फाउंड. सेकेंडली, अगर हम इनको कम खाते हैं, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी. यू नो, डेफिशिएंसी ऑफ एवरीथिंग इज बैड एंड इवन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑल्सो वेरी बैड. कमिंग ऑन टू कि वाइटामिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं. सो वी हैव दिस टेबल पार्ट. जनरली आई टोल्ड कि जो वाइटामिन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड वेजीज. सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे बिकॉज बी इज़ अ बी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. सो इसके लिए कोई हम एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं बता सकते हैं. सी इज़ इन सिट्रस फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं. इवन जो आपका सिंघाड़ा होता है खट्टा नहीं होता, बट उसके अंदर भी विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है. दिस स्पेसिफिक वन विटामिन डी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, अगर आप अपनी बॉडी को ओपन एरिया में, लाइक थोड़ा बॉडी का पार्ट ओपन जो है उसको, स्पेसिफिकली योर नेवल एंड दी एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन, पेट के आसपास पूरा कमर वाला एरिया, इफ़ यू लेट द मॉर्निंग सनलाइट फॉल ऑन टू इट, तो आपकी बॉडी जो है इट प्रोड्यूसेस दिस विटामिन. विटामिन डी इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ऐसा नहीं है कि हाँ भाई स्लीवलेस पहन के और बाकी पूरी बॉडी कवर करके बाजू के ऊपर धूप लगा ली, दैट विल ओनली कॉज टैनिंग इन ऑन द बॉडी. बट येस, विटामिन डी कब सिंथेसाइज होता है? व्हेन योर बैक एंड योर एब्डोमेन, स्टमक रीजन इज ओपन टू दैट सनलाइट. आप सबने नोटिस किया होगा ना, जब आप भी छोटे थे तो आपकी मम्मा क्या करती थी, बिल्कुल विदाउट क्लोथ्स तेल मालिश करके और धूप में लेटाते थे, धूप में तेल मालिश करते थे साथ में. दैट इज द मेन रीजन, दो दे वर नॉट अवेयर ऑफ कि किस लिए, बट येस दे वर एक्चुअली अलाउइंग योर बॉडी टू सिंथेसाइज दिस विटामिन डी, ताकि आपकी बॉडी विटामिन डी बना सके. ये बहुत ज़रूरी होता है बोन्स के लिए. हमारी बोन्स के अंदर जो कैल्शियम से बनी हुई हैं, वो कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब होगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कंप्लीट है. देन इज विटामिन ई एंड विटामिन के. हर डिफरेंट विटामिन का एक डिफरेंट फंक्शन है. What is the function of these vitamins? I'll click a pic of this and I'll add it in the last part of the video. From there, you can also get to know better about it. So vitamin A for good and healthy eyes. सबसे ज़्यादा important eyes के लिए. B complex overall growth and development. C immunity. आजकल आप सब खाते हैं, आंवला खाओ, immunity बढ़ेगी. च्यवनप्राश खाओ, immunity बढ़ेगी, right? Take all those citrus fruits, mausambi, lemons, limes, everything. Vitamin D. D is important because it helps in absorbing calcium, which is required for the formation of bones and teeth. Then is vitamin E. E किस लिए important है? क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए बहुत important होता है और ये help करता है A और C डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, उसके लिए A और C vitamin डिस्ट्रॉय ना हो जाएं. Now, out of all these vitamins which we have studied, no, there are parts of vitamins also कि कुछ vitamins water soluble होते हैं, कुछ vitamins fat soluble होते हैं, वो भी I'll tell you. उससे पहले vitamin K. vitamin K क्या करता है? It helps in clotting of blood. blood का clot करना मतलब आपको कहीं चोट लगी, थोड़े टाइम के बाद वो blood अपने आप जम गया. It happens because of this vitamin K which is present in your food items in your body. Now, out of all these vitamins, vitamin B and vitamin C, B, C,
बी सी, जब हम डेट्स लिखते हैं ना ए डी एंड बी सी लिखा जाता था बिफोर क्राइस्ट टाइप का, तो दिस विटामिन बी एंड विटामिन सी, दीज टू आर वाटर soluble एंड द अदर वंस ए डी ई एंड के, दे आर फैट सोल्यूबल। आपकी बॉडी के अंदर अगर फैट्स होंगे, मैं अभी फैट्स में आपको बोल रही थी ना कुछ वाइटामिन हैं जो तभी एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये विटामिन ए डी ई और के, ये आपकी बॉडी तभी एब्जॉर्ब कर पाएगी जब आपकी बॉडी के अंदर थोड़ा फैट होना ज़रूरी है, बिकॉज दीज गेट डिजॉल्व इन फैट्स एंड देन ओनली दे आर हेल्पफुल फॉर आर बॉडी. This is about now vitamins and their functions. This table is for your reference. This whole thing is the summary for what we have studied today. It tells us about the major nutrients, their types, and further subtypes. If rest of the topics regarding minerals, water and roughage, balanced diet, and deficiency diseases will be taken up in second part. If you have understood, do subscribe to my channel, like and share it with your friends.